Assalamu alaikum, everybody. This is Zorays here with another episode of On the Set. Today, we are joined with the auspicious personality who needs no introduction when it comes to traveling and tourism. Jawad Rashid, Mr. Jawad Rashid is one of the profound personalities relating to the traveling industry. And he's been providing his these kind of traveling consultancies to not only for people from in and around Pakistan, but also uh, to those people who have who wish to come to Pakistan. So, without further ado, I would like Mr. Jawad to introduce himself for the audience so they know about his area of expertise. Thank you so much, Zaresh. Assalamu alaikum to everyone and you as well. And this is an honor joining you here on this platform. And I must appreciate you, first of all, for this initiative. As you said, and most of our viewers will know as well, that right now, I am currently attached with a travel consultant firm as a managing partner, and we are providing our company has been providing services for last 8 years almost. And this has been traveling industry has been what I am doing for last 4 or 5 years full time. Before that, that I was an electronic engineer and was studying with you. And after that, I was working abroad in Qatar, Doha. And yeah, so now here it is. The traveling is what we are doing now. All right. So let's jump to the first question of the session. As you must be aware with the format of the show. Uh, how are you spending your time? आपका quarantine कैसा चल रहा है और what are your day-to-day matters with this regard? Yeah, this has been truly life-changing experience, and it should be, I think, for everyone. Uh, हमने सुना तो था कि कोई 1900 कुछ में वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वो कोई स्पेनिश इन्फ्लुएंजा आया था और काफ़ी सारे लोग दुनिया में मर गए थे एंड देयर वाज chaos and everything, but all that seemed something in a movie or because हमने देखा नहीं था. But this experience has been life changing, and to All think about it that everything is stopped and everyone is at home, so it feels surreal. मेरी भी यही routine है. I'm not doing anything at all almost. I'm just 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 passing the time, that's it. And I am trying to indulge myself in online work and freelancing that I was thinking from past couple of years के freelancing में जाना चाहिए, कुछ थोड़ा online work करना चाहिए. I'm trying to do that. And I'm working on my online vlog as well. I'm going to start a YouTube channel now. In fact उसकी हमने चीजें सारी set कर दी हैं. But so traveling wise, everything is stopped. all right. So you making the maximum out of this. I've just realized that you made your first ever Fiverr profile and uploaded a new gig as well. We welcome you on that platform as well because primarily this platform enables people to promote their content, which is promote their skills that they have, and we know who else than a reputed fellow like yourself who can write about traveling with hand experiences. And मैं इस बात में गलत नहीं हूँगा कि अगर आपको कोई सर्विस के लिए हायर करे सो शोका शोकी आप वो मुल्क भी फिर आएंगे क्योंकि आई थिंक इसे घर की मुर्गी दाल बराबर जवाब भाई इस पे भी जरा थोड़ा गाइड कीजिएगा कि so the ऐसी question is, just out of curiosity, since you are you have stakes in your own company and you're the mashallah managing director, so आपको भी उसी तरह मतलब you have convenience to go जब दिल किया बस बैग बंद किया और सैर सपाटा कर लिया या उसके लिए आपको मतलब टाइम निकालना पड़ता है क्या
क्या होता है? नहीं, डेफिनेटली यार, फॉर एनी एंटरप्रेन्योर लाइक इट इज फॉर एवरी अदर बिजनेसमैन, हमें तो ये पता है ना कि इफ यू आर नॉट एन एम्प्लॉय, इफ यू हैव योर ओन कंपनी, द मोर एफर्ट यू पुट इन दैट कंपनी, द मोर यू अर्न, द मोर सक्सेस यू अचीव. तो हमारे लिए तो, फॉर समवन हु इज पैशनेट अबाउट देयर वर्क, और वो अपने खुद कंपनी चला रहे हैं, दे शुड दे नो इट ऑलरेडी कि भाई जितनी एफर्ट डालेंगे, जितने घंटे काम करेंगे, उतना आउटपुट निकालेंगे. इट्स नॉट लाइक भी 9 to 5 है तो बस अब उसके बाद जो मर्जी कर ले, सैलरी उतनी मिलनी है, वो वाला हिसाब तो नहीं है ना ऑब्वियसली बिजनेस में. तो सेम गोज इन ट्रैवलिंग एज वेल, कि भाई आपने ट्रैवल करना है तो आप एक फिजिबिलिटी बनाते हैं, आप देखते हैं कि भाई आपका जो लेजर है, यानी प्लेजर वाली ट्रैवलिंग है, और दूसरी जो आपका एक नई डेस्टिनेशन पे आप जा रहे हैं, उसके आपका टोटल बजट क्या लग रहा है और वो कहाँ से निकलेगा. तो सो वी ऑफन वी व्हाट वी डू इज वी टेक अ ग्रुप ऑफ पीपल, एटलीस्ट 10-20 पीपल. उसमें से हमारा एक एक्सपीरियंस भी हो जाता है, नई डेस्टिनेशन का लर्निंग भी हो जाती है, हमारे नए कॉन्टैक्ट्स भी बिल्ड हो जाते हैं, और हमारा अपना भी घूमना फिरना हो जाता है. So that is what we do in the traveling industry mostly. सो बेसिकली इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम जब भी आप जैसे यंग एंटरप्रेन्योर से को अपने साथ लाइव लेते हैं तो उनसे ये जरूर पूछते हैं कि अगर वो बताना चाहें किसी एक खास हद तक, तो आपके बिजनेस मॉडल में वी वोंट बी आस्किंग यू अबाउट द ब्रेक इवन, बट क्या आपको पहले भी रेकी करनी पड़ती है कोई, अगर फॉर एग्जांपल आप टूर लेके जा रहे हैं तो क्या आप उससे पहले खुद भी एक आध दफा पहले विजिट करके आते हैं एंड देन यू गो विद द ग्रुप अगेन, या फिर सारा कुछ टाइमली मैट जिस वक्त आप जाते हैं तो ऑल एट वंस होता हाँ, इट डिपेंड्स आपके हर कंट्री के डायनामिक्स डिफरेंट हैं. जो कि टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, जो फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, उन पे तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप पहले गए हों तो फिर ही आप ग्रुप लेके जा सकते हैं. वो ऑलरेडी इतने लोग गए हुए हैं, ऑलरेडी इतनी ऑनलाइन रिसर्च मौजूद है. There is so much material available online that you can go and study, and you feel like after a few days you feel like you have already visited that country, है? and you can talk to people. We have developed, other than our professional channels, we have developed non-professional, or you can say casual relationship channels के जिसमें हम लोगों हमारी दोस्तियां होती हैं. There are many platforms like couchsurfing and other platforms जहाँ पे आप लोगों के साथ दूसरे मुल्कों में आप इंटरेक्ट करते हो, और आप एक्चुअल वहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअल पोजीशंस क्या हैं चीज़ों की, वो आप उनसे समझते हो, दोस्ती करते हो, बात करते हो. तो हम वेरी ऑलरेडी वहाँ पे एक वर्किंग करके जाते हैं. हाँ, फॉर डेस्टिनेशंस दैट आर लेस फ्रीक्वेंटली विजिटेड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं जाते, वहाँ के लिए हमें वी डू दिस. फॉर एग्जांपल, जिस तरह अजरबैजान स्टार्टेड ऑफ न्यू इन पाकिस्तान 4-5 years ago, जब उन्होंने ई वीज़ा कर दिया पाकिस्तानीज के लिए. सो आई हैड टू गो देयर फर्स्ट माई सेल्फ एंड सी कि क्या पोजीशन है यहाँ पे, टूरिज्म की क्या अपॉर्चुनिटीज है, and then I took a group there. So it depends on a destination. गुड. सो आप ही की डिस्कशन से दो पर्टिनेंट क्वेश्चन फिर फॉलो अप में मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो रिव्यूज होते हैं, आप जिस तरह कह रहे हैं कि टूरिस्ट ऑलरेडी हाईली अट्रैक्टेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो उस पे तो जो आपको इंटरनेट में विवाद मिल रहा होता है वो समहाउ कमेंसरेट कर रहा होता है जब आप एक्चुअली उधर जाते हैं और देखते हैं, रियलाइज करते हैं. एक बात ये इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा कि रिव्यूज इन्फ्लेटेड भी होते हैं. नंबर टू कि डिसरप्शन, क्योंकि एयरबीएनबी और अब हमें क्राउड जो आप वो बता रहे थे कि आप अपनी यू कैन स्वैप प्लेसेस, यू गेट टू इंटरेक्ट विद पीपल एंड देन फिर आप दोस्तियां भी कायम कर सकते हैं. सो इसमें इसमें वन बाय वन आप बताइएगा कि पहले रिव्यूज कैसे क्या वो फैक्ट अकाइड पे मबनी होते हैं, या फिर अगर कोई बंदा पहली दफा जाना चाह रहा है और वो कंसल्टेंसी की सर्विसेज नहीं लेता और ई वीजा पे डायरेक्टली अप्लाई करता है, तो ऐसे हजरात के लिए रिव्यू पर कितने परसेंट तक उनको यकीन करना चाहिए? यार, दो तीन पार्ट्स हैं आपके क्वेश्चन के. तो जो मुझे समझ आई है वो ये कि डेफिनेटली सब, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आप इफ यू हायर और ट्रैवल कंसल्टेंट और डोंट, इससे जो सब फर्क पड़ता है वो एवेलुएट कर लेते हैं. सबसे पहले तो इन इन फ्यू सेंटेंसेस,
आप खुद ऑनलाइन सर्च करके जाते हैं किसी भी डेस्टिनेशन पे, तो नंबर वन, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि भाई क्या होगा। नंबर टू, आपको अनसीन चीजें जो वहां जाके एक्चुअली होनी होती हैं वो कभी कभी नहीं पता चलती। आप चाहे एक आप चाहे एक कंसल्टेंट से सर्विसेज ना लें, लेकिन एक मशवरा करना बहुत ज़रूरी है मेरे नज़दीक। आपको एक एक्सपीरियंस्ड ट्रैवलर के साथ आपकी बात होना बहुत ज़रूरी है, कि वो एक्चुअली वहाँ पे जो वहाँ पे गया हो, ऑलरेडी उसने चीज़ें देखी हो, ये बहुत ज़रूरी है ताकि वो आपको वहाँ के प्लस माइनस बता सके। और एक प्रोफेशनल ट्रैवल कंसल्टेंट का फ़ायदा ये होता है कि वो फॉर वेरी नॉमिनल चार्जेस वो आपको हर चीज़ आपके डोर स्टेप पे आपको ला के प्रोवाइड कर देता है। मे इट बी टिकट्स, होटलिंग है, चाहे एयरबीएनबी भी है, लेकिन तो एयरबीएनबी की लोकेशन क्या होनी चाहिए, वो उसकी उसके वेल रिसर्च्ड हो, वो एक वहाँ पे एक अप्रूव्ड या जेन्युइन होस्ट का हो वहाँ पे एयरबीएनबी हो। तो चाहे टिकट्स हो, वीजाज हो, वट एवर, वो अगर एक ऐसा कंसल्टेंट है जो कि प्रोफेशनल है और उसको उस डेस्टिनेशन की नॉलेज है, तो वो आपको एक अच्छा मशवरा दे सकेगा। बेशक आप उससे सर्विसेज ना लें, आपको जो ऑनलाइन चीज मिल रही है जहाँ से you're getting it cheaper, so you can go for that option, but you should at least consult a professional or an experienced traveler before going on. आपकी बात में से बिफोर वी जंप टू द नेक्स्ट डिस्ट्रप्शन पार्ट, क्योंकि हम स्टार्टअप्स के लिए एक अवेयरनेस भी क्रिएट करना चाहेंगे कि एयरबीएनबी के आने के बाद क्या डायनामिक्स चेंज हुए ट्रैवल इंडस्ट्री के, और कौन से ऐसे नए स्टार्टअप्स हैं जो आएंगे। मगर उससे पहले एक क्वेश्चन में आपसे जो पूछना चाहूंगा वो ये है कि जब आप मच लाइक एनी बिजनेस, आपके बिजनेस में भी लोग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन प्रॉम्प्ट करते हैं, या हाउ मेनी क्वेरीज आउट ऑफ लाइक लेट्स से 10 actually materialize into people who either hire your services or adopt someone else's help and go, but they do actually make the trip. So वो इतने कितने परसेंट लोग होते हैं, 10 में से कितने लोग होते हैं जो कि फिर असल में हकीकत में वो ट्रैवल भी करते हाँ, ये फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि आज की डेट में हम बैठे हैं तो मेरे पास 10 क्यूरीज आती हैं, तो उसमें से फॉर एग्जांपल 6 मैच्योर होती हैं, लेट्स से। लेकिन इट वाज नॉट ऑलवेज लाइक दैट। इट टेक्स एक्सपीरियंस, इट टेक्स ब्रांडिंग, इट टेक्स मार्केटिंग, इट टेक्स सेल्स स्किल्स टू कन्वर्ट अ क्यूरी इनटू अ सेल। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। शुरू में व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ, मे बी एक या दो 10 में से क्यूरीज हैं वो दे टर्न इनटू एक्चुअल पोटेंशियल क्लाइंट्स। लेकिन विद पासिंग टाइम होता ये है कि क्यूरीज भी बढ़ना शुरू हो जाती हैं और आपकी ट्रांसलेशन रेट भी, सक्सेस रेट भी बेहतर होना शुरू हो जाता है। हैं। सो तो इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, लेकिन अब आजकल कह सकते हैं कि एटलीस्ट 5 आउट ऑफ 10 और मे बी मोर। All right. So माशाल्लाह, we wish you good luck with that. मैं आपका चर्न रेशियो इससे ज़्यादा इम्प्रूव होता जाए। जवाब भी अब आते हैं उस मेन एम्बिट की तरफ जिसको हम डिस्कवर करना चाह रहे हैं कि once the corona pandemic is over, then what? How would the countries resume their visa policies and how, मतलब क्या दुनिया उसी तरह वापस ट्रेवलिंग करेगी when it comes to traveling, या थ्रेशोल्ड एकदम से ऊपर जाएगा और देन स्टेबलाइज होगा? क्या क्या इसके मुहरकात होंगे कोरोना जब खत्म होगा? हाँ यार, इस पे वी हैव बीन डिस्कसिंग इन आवर इंडस्ट्री एज वेल एंड अमंग फ्रेंड्स एज वेल। तो इसमें पहले क्या होगा से पहले हमें थोड़ा सा फॉर फ्यू सेकंड्स हमें ये देखना चाहिए कि ये अभी क्या हो रहा है, जो तो उससे करंट इफेक्ट क्या पड़ रहा है। अभी तो पूरी दुनिया में ये हो रहा है कि ट्रैवलिंग बंद है, ठीक है, कोई कहीं नहीं जा रहा, कोई कहीं आ नहीं सकता, रिस्ट्रिक्शंस हैं, कंट्रीज या आने नहीं दे रही या जाने नहीं दे रही। तो उसकी वजह से एक तो ट्रैवलिंग, जो ट्रैवलर्स हैं जिनमें पैशन है, जो कि देखना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो फंस गए, ठीक है। तो जब भी ये खुलेगा, which will be within few months, maybe most probably इंशाल्लाह within 4-5 months normalize हो जाएंगी चीजें अगर, तो फिर ये वो जो एक्सप्लोरर जो है वो फंसा हुआ जो है ना वो छूटेगा, इट विल एक्सप्लोड जब जैसी रिस्ट्रिक्शंस खत्म होगी। तो वो एक, अगर ये स्लंप आ गया है अब, तो वो एक इंक्रीज आएगा, नंबर वन।
सेकेंडली लोगों के पास जो सेविंग्स पड़ी हुई थी, मोस्टली लोग जो सेव करके ट्रिप ट्रिप लगाते थे हर साल में कि अच्छा हम इतनी सेविंग करेंगे, एक्चुअली जो है वो ट्रिप लगाएंगे, तो वो सेविंग्स जो है ना वो डाउन चली गई हैं। वो इस पीरियड में चाहे आप एंटरप्रेन्योर हैं या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, एम्प्लॉई हैं, आपके डेफिनेटली स्पेंडिंग कुछ जो है ना आपको आपकी सेविंग्स में से जा रही है इसमें, और उस सेविंग में कमी आ गई, तो वो डेफिनेटली वो ट्रैवलर जो है उसमें कम से कम 6 महीने 1 साल का ब्रेक आएगा, वो उसके बाद उठेगा। तो बाकी जो डेस्टिनेशंस हैं जब ट्रैवलिंग शुरू होगी, जो ऑब्वियसली होटल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा है, जो टूरिस्ट इकोनॉमीज थी जो टूरिज्म पे डिपेंड करेगी उनको नुकसान पहुंचा है, तो दे विल इंसेंटिवाइज, वो ज्यादा वीजाज देंगी। यूरोप जो है फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, अगर आज 10 में से 10 वीजाज अप्लाई होते हैं पाकिस्तान में एंड इट ट्रांसलेट्स इनटू 2 सक्सेसफुल एप्लीकेशंस, तो इट विल इंक्रीज इट, वी आर होपिंग कि 5 आउट ऑफ 10 हो जाएगा ये रेट शेंगन वीजाज का। सिमिलरली फॉर अदर कंट्रीज दे विल, जो टूरिज्म पे प्रमोट टूरिज्म पे डिपेंड कर रही थी, दे विल ईज द वीजा रिस्ट्रिक्शंस। तो होटल्स की प्राइसेस ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि कम हो रही हैं, जहाँ जहाँ लोग हैं, या इवन पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान से बाहर भी होटल्स की प्राइसेस बेटर हो रही हैं। एयरलाइंस को शुरू में बिजनेस चाहिए होगा, दे विल डिक्रीज देयर प्राइसेस, दे विल गिव प्रमोशंस। तो ये डेफिनेटली एक स्लम्प आ रहा है, लेकिन जैसे ही हालात नॉर्मलाइज होंगे इट विल टेक ऑफ। सो एक ऐसी सेवी इंडस्ट्री में जिधर बैकएंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बैकएंड प्रॉफिटेरिंग होती है, तो क्या मतलब टूरिज्म एजेंसीज लाइक योरसेल्फ, आप लोग भी अपना उसको थ्रेशोल्ड को कम करेंगे, प्रॉफिट मार्जिन को इंसेंटिवाइज करने के लिए लोगों को, और ये तो फ्रॉम परस्पेक्टिव हो गया कंज्यूमर के, एंड ऑल्सो फ्रॉम द एयरलाइंस पॉइंट ऑफ व्यू, is it the right time for people who are aspiring to come or may have joined in the last couple of months this industry and unfortunately have been encountered with this corona pandemic, क्या उनके लिए इस वक्त सीजिंग द अपॉर्चुनिटी, इस वक्त इन्वेस्टमेंट करके टिकटों का जो कोटा होता है समहाउ वो परचेज करने का या उसके अंदर इन्वेस्ट करने का अच्छा मौका है, या once the resumption happens and people reevaluate, hospitality industry reevaluates itself and airlines also follow the suit, तब जाके वो अपनी बाइंग करें टिकटिंग के पॉइंट ऑफ हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने बात की कि इसमें जो है वो व्यू मार्जिन्स कम हो, तो वो डेफिनेटली कम होंगे हर हर एक सेक्टर में, जहाँ पे चाहे जिस तरह बताया होटल्स हैं, वो होटल्स की प्राइसेस कम करेंगे, वीज़ाज जो हैं वो कंट्रीज जो हैं वो वीज़ाज की रिस्ट्रिक्शंस कम करेंगी, मे बी प्राइसेस भी कम करें, तो हर बंदा उसको प्रमोट करेगा कि अच्छा ठीक है भाई अब आप ट्रैवल करें फिर उसी स्पीड से। तो डेफिनेटली जो कंसल्टेंट्स हैं, जो एजेंट्स हैं, वो भी अपने मार्जिन को कम करेंगे, और जो सक्सेसफुल और अच्छे प्रोफेशनल लोग हैं वो तो ऐसे ही करेंगे। बाकी प्रॉफिटियरिंग वाले लोग तो होते ही हैं जो कि किसी का भी नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं, वो हर इंडस्ट्री में होते हैं, तो वो एक्सेप्शन है, मैं उनको नहीं काउंट करता। लेकिन ये कि जो प्रोफेशनल सक्सेसफुल लोग जो भी होंगे वो डेफिनेटली इनकरेज करेंगे, नंबर वन। सेकेंडली आपने जो बात की है कि ये डेफिनेटली ऐसा भी होगा, जो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट की बेस पे बात करें ना, अगर कि इज इट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस, मैं पर्सनली आई थिंक कि whenever you want to invest into a business, you should first have complete knowledge about that business, कि वहाँ पे हो क्या रहा है, होता क्या है, साइकिल कैसे चलता है, how does an investment turns into brings profit, कितने अरसे बाद लाती है, रेट ऑफ रिटर्न क्या है, या इनकम क्या है इसके ऊपर, तो वो नॉलेज जिसको है दे ऑलरेडी नो कि इन द ट्रैवल इंडस्ट्री दिस इज नॉट द टाइम टू डू एनीथिंग। First, you should wait for everything to start being normalized. Flights चले, थोड़ा सा सिस्टम चले, थोड़ा सा ट्रैवलिंग स्टार्ट हो, yes, then after that when इन जो टिकटिंग के ग्रुप्स की आप बात कर रहे हो, परफेक्ट टाइम इज कि व्हेन a sector, for example लाहौर टू दुबई का सेक्टर है, दैट सेक्टर हैज अ बिग लोड, वहाँ पे ज्यादा ट्रैवलिंग हो रही है, फिर फायदा होता है इन्वेस्टमेंट का टिकटिंग के अंदर। सो अभी नहीं,
everyone should wait, but अगर कोई इंटरेस्टेड है इसके अंदर इन्वेस्ट करने के अंदर, तो दे शुड कीप एन आई, दिस टाइम, क्वारंटीन टाइम शुड बी एन आइडियल टाइम टू लर्न अबाउट द बिजनेस. तो उनसे समझें, सोचें, देखें, अंडरस्टैंड करें कि क्या चीज़ है, और व्हेन एज सून एज इट नॉर्मलाइजेस, तो दे शुड बी रेडी विद द इन्वेस्टमेंट देन. Very right. And we hope that a few people from our audience, actually, we want you to expect a few people jumping into right into your inbox, which we don't want to happen, to seek your personal advice. So we hope that you're open for that as well. मोस्ट However, वेलकम. in the last part of the session, we will be we are right now currently showing your social media page, so the people can also seek out best opportunities and deals when it comes to traveling. One quick question that I have posted the poll about, and um, would like you to comment. कि अगर आज traveling open की जाती है, so is it too risky for us to travel, or would you personally board a flight and go to whichever destination you wanted to? आज वो right वक्त है कि अगर सारी flights resume कर दी जाएं, तो जो लोगों का concern नहीं नहीं, डेफिनेटली. इवन दो आई एम इन द ट्रैवल इंडस्ट्री, एंड हमारा काम पूरी दुनिया में अगर देखा जाए, ऑल ओवर द वर्ल्ड, द टूरिज्म एंड ट्रैवल इंडस्ट्री, मेरा ख्याल है कि इट हैज गॉट द वर्स्ट हिट पॉसिबल. तो जिसका कि बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि 100 से जीरो पे आ जाना, तो वो सीन हुआ. तो लेकिन ऑब्वियसली नंबर वन प्रायोरिटी शुड बी हेल्थ एंड सेफ्टी फॉर एवरीवन. फॉर मी it is health and safety of me and my family. इसी तरह सबके लिए नंबर वन प्रायोरिटी इज ऑब्वियसली हेल्थ. तो आपको, द मोर यू कॉन्टैक्ट यू मेड विद योर हैंड्स, द मोर यू गो आउटसाइड, जितनी मुख्तलिफ चीज़ों को आप टच करते हैं, और फिर आपका रिस्क बढ़ता है टू कॉन्ट्रैक्ट दिस डिजीज. लेकिन होपफुली जिस तरह के देखने में आ रहा है कि वैक्सीन्स भी डेवलप हो रही हैं अब, एंड दे विल बी इन द मार्केट विद इन फ्यू मंथ्स इंशाल्लाह. वैक्सीन्स आ जाएंगी, ट्रीटमेंट्स ऑलरेडी कुछ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं, कुछ और आगे मजीद डेवलप हो जाएंगे. तो इंशाल्लाह रिज्यूम जल्दी हो जाएगा. बट नो, दिस इज नॉट द टाइम कि जिस पे कोई भी बंदा डिमांड करे कि यू शुड ओपन द फ्लाइट्स राइट अवे. तो या इवन ओपन जो थी भी जब कुछ हद तक, तो वी वर डिस्करेजिंग पीपल फ्रॉम ट्रैवलिंग एक्चुअली, अगर नेसेसरी नहीं है, इफ इट्स नॉट एब्सोल्युटली नेसेसरी, if it's just a pleasure trip, if you're going for visiting a country, so people always postpone. plan the drinks for that. So this brings me to the previous question, which we unfortunately skipped. आपने कहा कि जी अभी फिलहाल तो इंडस्ट्री को हॉल्ड लगा हुआ है. So is it true that once the supply goes, once the demand once the supply resumes, the demand भी एकदम से चढ़ जाएगी, और you're not looking into diversifying your operations like a lot of other firms and organizations or industry people are diversifying themselves, they are digitizing, they may be talking about augmented reality कि जी हम जो भी इधर बैठे हुए ना टूर दे सकते हैं आपको. मगर since this is a very first hand experience, for example when it comes to going to perform डेफिनेटली डेफिनेटली. pilgrimage, में ये भी एक क्वेश्चन बहुत बार बार आ रहा है कि क्या इस साल हज होगा और उम्रा जब रिज्यूम होंगे तो क्या बहुत स्ट्रिंजेंट किस्म की. सो आई वुड लाइक यू टू क्विकली एड्रेस दिस क्वेश्चन हज वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड देन jump to the main with your conclusive remarks on Airbnb जैसे स्टार्टअप्स जो कि थ्राइव करते हैं कमीशन के फॉर्मेट के ऊपर. उन बिजनेसेस पे क्या होगा, उन बिजनेसेस के लिए क्या ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कि हॉस्पिटल्स तो क्वारंटाइन कर सकते हैं, मगर एक इंडिविजुअल से डर लगता है कि यार उसके घर में जाके रहना है तो खुदा ना खास्ता सारे जरासीम उसके घर में ही ना बैठे. तो इस पे जरा कमेंट कर दीजिए और उसके बाद फिर हम आपसे रुक. हाँ, लास्ट से स्टार्ट करते हैं. डेफिनेटली ये जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो एयरबीएनबी है, चाहे booking.com है, चाहे hotels.com है, वट एवर, जितने भी जो प्लेटफॉर्म्स थे जिसमें कि यू गो टू यू रेंट आउट प्लेस और रूम, तो डेफिनेटली वो
एक अननोन स्पेस में जाना, where you don't know कि पहले कौन रह चुका है, वहाँ पे क्या डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर हुआ है नहीं हुआ, so that is not recommended. तो obviously उनको हिट पहुंची है, डेफिनेटली देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, और वो हिट पहुंचती रहेगी जब तक कि ट्रैवलिंग रिज्यूम नहीं होगी, जब तक ये वायरस जो है वो उस पर कंट्रोल नहीं होगा. इट विल बी लाइक दैट फॉर फ्यू मंथ्स एट लीस्ट. और यू आस्क्ड बिफोर दैट अबाउट हाँ बहुत सारे ट्रिप, लोगों के जो लोग तो इसमें जी डिजिटाइजेशन पे और इस पे डेफिनेटली हमारी, इनफैक्ट कुछ दिन पहले ही हमारी बहुत ही एक अच्छी डिस्कशन, डिटेल डिस्कशन हुई हमारे आपस की इंडस्ट्री के जो लोग थे, और उसमें वी डिसाइडेड टू फोकस मोर ऑन ऑन टेकिंग द बिजनेस ऑनलाइन. और उसमें me personally we have developed the social media profiles, Twitter, Instagram, YouTube वगैरह. उस पर अब हम कंटेंट तैयार कर रहे हैं, that we will put it there. We are working on updating our website in a dynamic style जो कि ज़्यादा इंटरैक्टिव हो, और सर्विसेज हमारी ऑनलाइन ही लोग हमारी वेबसाइट पे जाके ही अवेल कर सकें. फॉर एग्जांपल उनको वीज़ा कंसल्टेशन चाहिए, कोई इंग्लैंड का वीज़ा प्रोसेस समझना है, किसी को यूएस का समझना है, किसी को कनाडा का समझना है, तो दे जस्ट गो ऑन द वेबसाइट एंड they pay online and they get all the help that they need from that website. तो ये चीज़ें हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं. तो डिजिटाइजेशन की तरफ वैसे भी दिस इंडस्ट्री शुड गो टुवर्ड्स डिजिटाइजेशन, एंड ऑनलाइन is the future of this industry as well. तो उसको तो वैसे भी इग्नोर नहीं करना चाहिए. Nobody can thrive further in this industry without that digitization. और जो वर्चुअल वाली बात है, आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि यू टॉक्ड अबाउट दिस, बिकॉज आप इस इंडस्ट्री के नहीं भी हो डायरेक्टली, लेकिन एंड आई एम पॉजिटिवली इम्प्रेस्ड कि आपके जहन में भी ये बात आई. वी वर टॉकिंग एग्जैक्टली अबाउट दिस थिंग के फॉर एग्जांपल मैं आई एम लिविंग इन अ सिटी, तो मैं अपनी सर्विसेज ऑफर करता हूँ कि यार I will, I will take care of myself. Mask लगा के I will take a camera and I will go out and show you the place which you want to visit. आप किसी और कंट्री में बैठे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ वो जगह सारी जो आप देखना चाहते हैं. You want to view a certain river, a certain mountain. You want to experience the trail, climbing the trail of a certain hill. तो ये yes एक ऑगमेंटेड रियलिटी वाला या ऑनलाइन वर्चुअल टूर्स वाला ये काम इट विल इट विल सेल. तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है. इवन हज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, उम्र के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, if someone wants कि वो घर में रहें from the comfort of their houses, they want to experience that, so definitely it is a thing that will sell in these days. just last question from you from our side and then we will say goodbye. जवाद भाई, बहुत सारे लोग आजकल व्लॉगिंग कर रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं और ट्रैवल व्लॉग्स की ट्रेंड है. जिस तरह आपने हज का भी बताया, तो देयर वर पीपल के जिन्होंने हज परफॉर्म किया एंड दे created absolutely phenomenal content and which got viral automatically and they also monetized it in some one way or the other. So what is your tip around creating travel vlogs? Is there any specific gadgets that you can recommend, or maybe which are the easier sites to visit first? Which पाकिस्तान के लिए कौन से, अगर पाकिस्तान से हट के अगर कहीं पे जाना चाहता है ब्लॉगर, तो उसके लिए सबसे सस्ता और आसान पैकेज कौन सा है? ये मैं एक से दो बंदों के या तीन मैक्सिमम लोगों के ग्रुप की बात कर रहा हूँ. हाँ, बहुत अच्छा सवाल है यार. व्लॉगिंग बिल्कुल, बहुत आपने सही पॉइंट आउट किया कि पाकिस्तान में वीलॉग्स, खासतौर पे ट्रैवल वीलॉग्स बनाने का द ट्रेंड हैज बीन इंक्रीजिंग, एंड इट्स वेरी इम्प्रेसिव एक्चुअली, to see के people, even though I don't it doesn't matter for me कि वो monetize उसको कैसे कर रहे हैं नहीं, लेकिन अच्छी क्वालिटी के, बहुत अच्छी क्वालिटी के लोग जो गैजेट्स यूज कर रहे हैं, कैमराज एंड एवरीथिंग, सो इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव ट्रेंड एंड इट शुड इंक्रीज. और जो वो कैसे होगा, वो डेफिनेटली ऐसी होगा अगर यू विल फाइंड अ बजट डेस्टिनेशन, अ बजट ट्रिप
कि आप मिनिमम प्राइस के अंदर यू कवर मैक्सिमम पॉसिबल। तो उसमें जो टॉप 2-3 डेस्टिनेशन मैं मेंशन करूँगा, नंबर वन, आई हैव बीन दैट डेस्टिनेशन 3 times नाउ, इज मलेशिया। मलेशिया में फॉर पाकिस्तानी इट्स वेरी इजी टू ऑब्टेन द वीज़ा। आपका पासपोर्ट कहीं नहीं जाता। फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम यू इवन डोंट नीड अ ट्रैवल कंसल्टेंट इफ यू डोंट वांट। तो यू कैन जस्ट अप्लाई एन ई वीज़ा। आपको घर बैठे वीज़ा मिल जाएगा। यू कैन बाय द टिकट ऑनलाइन और थ्रू अ ट्रैवल कंसल्टेंट वट एवर। आपका टिकट मिल जाएगा। यू कैन गो देयर। होटल्स आर वेरी इकोनॉमिकल। पाकिस्तान से हाफ प्राइस या इवन लेस देन दैट वहाँ पे प्राइसेस हैं होटल्स की। और there is scenery of every kind, मतलब beaches हैं, there are different types of beaches. You will see 10 different types of beaches in Malaysia. ग्रीन माउंटेन्स हैं, जिस तरह इस्लामाबाद में हिली माउंटेन्स हैं, ग्रीनरी है, वो भी है वहाँ पे। बड़ी माउंटेन्स भी हैं वहाँ पे, प्लेन्स भी हैं वहाँ पे। मतलब बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है और वेरी इकोनॉमिक। द नंबर वन डेस्टिनेशन, राइट? उसके या बाद आई फिर इन माय पर्सनल ओपिनियन हलाल फूड है, अच्छी एंटरटेनमेंट है बच्चों के लिए भी, अगर इफ यू वांट टू गो विद फैमिली। और थाईलैंड की तरह मतलब थोड़ा वहाँ पे वो नहीं है, बहुत ज्यादा रश नहीं है हर जगह पे, या बहुत टू टूरिस्टी नहीं है। सो और थाईलैंड ऑफ द लिस्ट। थाईलैंड पे आप रिकमेंड नहीं कर रहे, इससे अंडरस्टैंडिंग की असम्पशन। थाईलैंड सेकंड भी डेस्टिनेशन, थाईलैंड इज गुड डेस्टिनेशन फॉर टूरिस्ट, बट वो मैटर करता है कि आपके रीजंस क्या हैं ट्रैवल करने के। क्योंकि फॉर एग्जांपल थाईलैंड में पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन इन चीप एंटरटेनमेंट। तो इफ यू वांट चीप एंटरटेनमेंट तो डेफिनेटली गो फॉर थाईलैंड, बट आप जहन में रखें कि आपको रश होगा हर जगह और एवरीथिंग विल बी टू क्राउडेड। बट इफ यू वांट पीसफुल enjoyment with your family or friends, so I will not recommend Thailand. then the next destination, two destinations would be of the list of three. हाँ, next destination if you want in Central Asia, Azerbaijan and Uzbekistan. Both of these countries, they are very close to each other. You can cover them in a single trip as well. और ये they have very rich history. Uzbekistan में Islamic history, if you're interested in that, तो architecture, Islamic और history बहुत ज़्यादा well preserved है वहाँ पे। और लोग बहुत अच्छे हैं वहाँ के, दोनों कंट्रीज के। अजरबैजान में बाकू जो कैपिटल है उनका, यू इफ पाकिस्तानीज गो देयर, वो ऐसे मतलब पैशन से मिलते हैं आपको, ऐसे प्यार से मिलते हैं आपको कि यू वी आर नॉट यूज टू बीइंग ट्रीटेड वेरी नाइसली अब्रॉड। पाकिस्तानीज बट Yeah, पाकिस्तानीज को ऐसे वार्मली वो वेलकम करते हैं इन बोथ कंट्रीज, स्पेशली अजरबैजान बट ऑल्सो इन उज्बेकिस्तान। तो right. अजरबैजान में जो ओल्ड ह्यूमन एरा था, जो कि हम कहते हैं कि गार में रहने वाले लोग थे, केव मैन थे, केव पीपल थे, उनका बहुत ज्यादा वहाँ पे दे हैव प्रिजर्व्ड दैट हिस्ट्री। द फायर वर्शिपर्स, द फायर टेम्पल्स, The वो भी rest, वहाँ पे बहुत अच्छी प्रिजर्व है। और दे हैव डेस्टिनेशंस लाइक स्की रिजॉर्ट्स, लाइक we have in Malam Jabba, they have so सिमिलर स्की रिजॉर्ट्स। top तो वो three. बहुत अच्छा एक वो सेंट्रल एशिया का वो डेस्टिनेशन हो सकता है। Better. Thank you so much, Jawad. It was pleasure having you on the show. Or we, it's such a large topic है, इसको cover करना बहुत नामुमकिन था। अभी मैं जाते जाते कोई और सवाल ना पूछ लूं, मगर ये बताइए कि जिन लोगों के वीजास लगे हुए थे, तो उनको अब दोबारा से, और वो एक्सपायर हो जाएंगे इस कोरोना टाइम में, तो उनको दोबारा री, मे बी मैं अपने ही सवाल, अपनी पर्सनल उसके अफ्लिक्शन से रिलेटेड आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। तो अगर वैलिड वीजास थे तो उनको रीअप्लाई करने के लिए क्या तमाम प्रोसीजर से दोबारा गुजरना पड़ेगा? यस और नो? हाँ यार, ये this is a very important question. Those people who had valid visas or they have bought already the tickets, so definitely all countries will provide uh, some consolation, some policy कि वो वीजास दोबारा लग सकें, या वो उन्हीं वीजास के ऊपर वो एक्सेप्ट कर लें आपको कि ठीक है आप आ जाएं, वो एंट्री अलाउ कर दें।
सो तमाम कंट्रीज ये ऑफर्स देंगी डेफिनेटली. सो डोंट वरी, और टू ऑल द ट्रैवलर्स आई विल से डोंट वरी. आपके पैसे जो वीजे पे लगे हैं वो भी सेफ रहेंगे. योर टिकट्स पे जो आपने पैसे दिए हैं वो भी सेफ रहेंगे. डेफिनेटली वो स्टक तो हो गए हैं. एवरीबडी इज स्टक एवरी